لبنانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈ وولف ہیکل کی جی ایچ کیو راولپنڈی آمد۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور لبنان کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر گفتگو۔ پاکستان اور لبنان کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ لبنان کے فوجی سربراہ کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ایران سے معاہدے کا منصوبہ چند روز میں پیش کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ امریکہ بہت جلد کامیابی کا اعلان کرے گا۔ آئندہ 2 ہفتے میں ایران کے حوالے سے مکمل فتح کا اعلان متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا انہوں نے ایران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بتا دیا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ 5 ممالک نے مجھ پر نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ ہم نعروں یا محض وعدوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالیباف کا امریکہ کو واضح پیغام۔ کہا جنگ کا خاتمہ اور خطے میں استحکام ہمارا مقصد ہے۔ جنگ کے خاتمے اور استحکام کا مطلب امریکہ سے تعلقات کی بحالی نہیں۔ ہم بحری ناکہ بندی کو دشمن کے لیے ایک اور شکست میں بدل دیں گے۔ ایرانی اسپیکر نے کہا مفاہمتی یادداشت متعلق صدر ٹرمپ کا بیان متفقہ نکات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے گا۔ بجٹ کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہیں کیا جا رہا۔ وزارت پارلیمانی امور نے 12 جون بروز جمعہ کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ حکومتی ارکان قومی اسمبلی کو جمعرات کی رات تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی۔ پاکستان کے خلاف الزامات بے بنیاد اور پروپیگنڈا ہیں۔ افغانستان نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا بیان۔ کہا افغانستان پاکستان اور دیگر ممالک کے سیکیورٹی خدشات کے نظر انداز کر رہا ہے۔ صورتحال درست کرنے کا موقع اب بھی ہے لیکن وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنی قومی سلامتی کا دفاع کرے گا۔ مزید کہا بھارت نے ٹی ٹی پی کی مذمت کی نہ بی ایل اے کی۔ بی ایل اے دراصل فتنہ ہندوستان ہے۔ اور امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ کے میچ کھلاڑیوں کے لیے وبال بن گئے۔ سینیگال کی ٹیم کے ساتھ امریکی ایئرپورٹ پر ناروا سلوک۔ خصوصی طیارے سے اترتے ہی کھلاڑیوں کی مجرموں کی طرح جام تلاشی لی گئی۔ جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ سے حتمی مسودے پر بات چیت جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا کہ مسودے اور گفتگو کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں کمی لانے میں کامیاب رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں نیتن یاہو پر واضح کر دیا ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں خود کو اکیلے پائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے واضح الفاظ میں کہا نہ نئی جنگ چاہتا ہوں نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ نیتن یاہو نے ایران پر حملے سے متعلق دیر سے آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بجٹ پر اتفاق ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کی منظوری کی یقین دہانی کرا دی۔ ایوان صدر میں بڑی بیٹھک۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ بلاول بھٹو، محسن نقوی، اسحاق ڈار اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی شرکت۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی بھی ملاقات۔ آزاد کشمیر کی صورتحال اور وفاقی بجٹ پر بات ہوئی۔
गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया। GBA 15 के 1 और GBA 16 के 3 पोलिंग स्टेशंस पर 1 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा वोटिंग होगी। और कराची में सुबह सवेरे ही पारा 31 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 37 तक महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। लाहौर में भी सूरज का पारा हाई, सुबह से ही शदीद गर्मी। ईरान पर इस्राएली हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को अकेले पाएगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से राबता करके वाज़ेह अल्फाज में कहा, नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले से देर से आगाह किया। एक दूसरे पर हमलों के बाद ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर हो गया। ईरानी फौज का इजराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां रोक दी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इजराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोक रहे हैं। इजराइल भी लबनान पर हमले बंद करे, वरना सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। कौम के हकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं हमने मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात से पीछे हटे। इत्तेहाद और दानिशमंदी से इस आज़माइश से भी सुरखरू होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर ईरान पर हमले रोक दिए। इजराइल ने धमकी दी कि हिजबुल्लाह के हमले पर बैरूत निशाना बनेगा। जनूबी लबनान में हमले जारी रहेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट पर इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी की यकीन दहानी करा दी। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, इसाक डार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और वफाकी बजट पर बात हुई। बजट की तारीख खबरों में छा गई। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में फिर तब्दीली का इम्कान। बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने पर मुशावरत। हतमी फैसला आज होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की कई उमूर हतमी ना होने की तस्दीक। कहा, अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSG पर मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में विफाक सबसे ज्यादा फंड्स बलोचिस्तान को देगा। सिंध में सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इस साल शुरू किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास अब 10 जून को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इससे पहले 22 मई, 3 और 8 जून के कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास मुलतवी किए जा चुके। आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां। कोहाला में मार्केटें खुली रहीं। एहतजाज की कॉल मुस्तरद। करदम कमेटी के मुसल्ला अनासिर की इदारों पर फायरिंग। मुसल्ला अफराद ने CMH रावला कोर्ट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिम्मेदारी का मुजाहिरा। महदूद कार्रवाई में CMH का मुहासरा खत्म कराया। 6 जून से अब तक 4 एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। पुलिस के 3 और FC का 1 एहलकार शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और PP की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद PDM की तर्ज पर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का फार्मूला भी तय पा गया। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्कुराते हुए जुमला, आखिर बेटा किसका है? आसिफ जरदारी का मुस्कुराते हुए जवाब। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश, बिलावल भुट्टो ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। शानदार कामयाबी पर तमाम जालों को मुबारकबाद। पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात जाली और धांधली ज़दा हैं। धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पीटीआई का गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाने का ऐलान। पानी को सियासी हथियार बनाना जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक की रजामंदी से मुमकिन है। फ्रांसीसी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पानी पर सियासत खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सियासी नहीं, बका का मामला है। तेज़ाब गर्दी संगीन और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद की रिहायशी खातून पर तेज़ाब फेंकने के केस में मुजरिम अब्दुल मन्नान की अपील खारिज कर दी। अदालत ने मुजरिम की उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा। चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा शुमाली कोरिया। चीनी सदर की शुमाली कोरिया के सरबराह से वफूद की सतह पर मुलाकात। तिजारत और ज़राअत, तामीरात और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा चीन और शुमाली कोरिया को स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाना चाहिए। मुहर्रमुल हराम में फौज और रेंजर्स तलब करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब में मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। महकमा दाखिला ने तमाम अजला के लिए फौज और रेंजर्स तलब कर ली। फौज और रेंजर्स पुलिस की मुहर्रम में मदद करेगी। महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासला इरसाल कर दिया। तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा तमीम इकबाल का क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फरोग के लिए खुशाइंद है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के फरोग में भरपूर किरदार अदा करेगा।